So hello all, I welcome you all in our next video of online class, and today we are starting with the same chapter, that is the lost child, lesson 1 of movements, right? And this is a part of periodic test 1. So class, if you remember in our last video or in our last class that was held as a live English live class, we have we gone through this same chapter, that is the lost child, and we have studied till that this child goes to a fair with his mother and father, right? And he was totally attracted by all the things that he saw over there, right? For example, he was attracted towards the toys shop, right? The sweet shops and several other things, right? Then at the same time he asked his father to buy all those things, especially some toys and burfi, that was a kind of a sweet that he wanted to eat. But he was very well known that his father will not uh, uh, allow him to buy those toys or to buy that sweet. Why? Because they were he his father was very strict person, right? So he denied all the time. This boy, this little child, was asking the things, right? Then till here we have studied, right? So today we will be studying, we will be going through the other paragraphs that are given in the book, right? And we will be going through, we will be reading it, we will be I will be explaining it to you, right? And then you will be doing your homework at the end of the video, right, after watching the video. So class, I am starting with the explanation of the paragraphs, right, in this video. So let's start, right? So Prayag Public School, English Literature Movements, Periodic Test 1, Class 9th, Lesson 1, The Lost Child, which is getting continued, right? Let's start. So the lost child. Let's proceed further. A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Right? So a man was standing. There was a man in that particular fair. A man was standing with a pole. Pole means एक डंडे के साथ वो खड़ा था, और जिस पे वो और जिस पे सारे क्या लगे हुए थे, बैलून्स लगे हुए थे, गुब्बारे लगे हुए थे, ठीक है। और वो बेच रहा था उनको उस मेले में। जैसे आपने कई बार देखा होगा मेले में बैलून्स जो सेलर होते हैं वो कैसे एक डंडे में बैलून्स को लगा के बेचते रहते हैं, तो उसी तरह ये आदमी भी वहाँ पे बैलून्स बेच रहा था। एंड what colors these balloons of, they are of yellow, red, green and purple, means different colors, colorful balloons he was selling. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. Now these colorful जो बैलून्स थे वो किसकी तरह लग रहे थे? रेनबो की तरह। जैसे आपने रेनबो देखा होगा तो उसमें भी कलरफुल होते हैं, ठीक है। देर आर 7 कलर्स, सो लाइक दिस there these colorful balloons were looking like a rainbow. Here glory means shine. They were shining and they were simply looking like rainbow because of their silken colors, right? And he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming means strong emotions, ठीक है। और possess means to hold, मतलब उसे पाना। possess का मतलब होता है कि उसे पाना या रख लेना। तो उसके पास इतने ज़्यादा, इस बच्चे को इतने सारे कलरफुल बैलून्स देखकर इतना ज़्यादा डिज़ायर या स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ गए थे उसके अंदर कि वो सारे के सारे बैलून्स खरीद लेना चाहता था। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, राइट। पर वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता था कि उसके फादर जो हैं या उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको बैलून्स नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा नहीं रह गया था इन सब ऐसे खिलौनों के साथ खेलने के लिए, ठीक है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। फर्दर मीन्स टू प्रोसीड, मीन्स आगे की ओर बढ़ जाता है बिना कुछ कहे। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, ठीक है। अब वहाँ आगे थोड़ा बढ़ता है तो उसे एक स्नेक चार्मर दिखता है। स्नेक चार्मर मीन्स जो सपेरा होता है, वो अपनी जो वो बांसुरी लिया रहता है, जो लेके वो सपेरे के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे को वो बजाता है, वो
वो बजाता रहता है। और स्नेक जो है, आपने देखा होगा कि सपेरे जब आते हैं तो किस तरीके से एक बास्केट में कॉइल्ड करके वो स्नेक पड़ा रहता है उसमें ना, और किस तरीके से वो अपने फन निकाल के बाहर करता है जब उसका उस बास्केट का कवर हटाया जाता है या वो स्नेक चार्मर हटाता है, राइट। तो उसी तरीके से ये स्नेक जो सपेरा था वो अपने इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा था। और सांप जो था वो कॉइल्ड का मतलब है यहाँ पे कि मतलब लपेट के, जैसे आपने देखा होगा ना वो लपेट के बैठे रहते हैं सांप जिस तरीके से बास्केट में, ठीक है। तो उस तरीके से सांप भी वहाँ पे कॉइलिंग कर करके उस बास्केट में बैठा हुआ था। हिट्स इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। स्वैन आपने देखा होगा, जो कि आपने देखा होगा स्वैन से जब ये वहाँ पे तैरता है पानी में, तो स्वैन का सर आपने देखा होगा किस तरीके से रहता है, बेंड, जैसे कि सांप खड़े होने के बाद जिस तरीके से वो फन अपने उठा के दिखता है, उसी तरीके से इसको किससे कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है, स्वैन से, ठीक है। तो स्वैन की तरह ही उसका जो मुंह था, मीन्स उसका जो पूरी बॉडी थी, जो कि वो रेस करके उस बास्केट से बाहर निकल के मतलब उस बास्केट में पड़ा हुआ था, मीन्स दिख रहा था। और ग्रेसफुल यहाँ का मतलब है इन अ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत आकर्षित या आकर्षित तरीके से वो वहाँ पे वो ये जो सांप है वो अपने बास्केट में सर को निकाल के, अपने फन को निकाल के वो वहाँ पे बैठा हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और क्योंकि वो स्नेक चार्मर जो सपेरा था वो लगातार वो अपने इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा था, तो यहाँ पे ऑथर किस तरीके से कंपेयर किया है उसको, क्योंकि आपको पता है दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स, राइट। जो सांप होते हैं उनके कान तो होते नहीं हैं, तो यहाँ उसके इनविजिबल ईयर्स, यहाँ पे इनविजिबल मतलब उसके कानों में तो नहीं जा रहा था, ठीक है। वाइल द म्यूज़िक, और जो म्यूज़िक यहाँ पे बज रहा था, सांप के पास कान तो था नहीं, पर वो इस तरीके से लग रहा था जैसे कि वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और यहाँ पे कंपेयर किससे किया गया है कि मान लो कि जैसे आपने कभी देखा होगा शांत अगर पानी रहता है, जैसे किसी गड्ढे में, बड़े से गड्ढे में आप पानी है, ठीक है, रुका हुआ है, तो आप अगर उसमें पत्थर मारते हो, एक छोटा सा पत्थर अगर मारोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि वहाँ पे वेव्स टाइप की चलने लगेगी, मतलब हल्का सा पत्थर आप डिप करोगे तो वो एक वेव्स की तरह आपको लगता हुआ, मतलब हिलता हुआ पानी आपको दिखेगा, और वो वेव्स ऐसे लगेगा कि आपके पास, मतलब वो किनारे तक आती है ना, वो लहर जो होती है छोटी सी। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट वो स्नेक चार्मर बजा रहा था, ठीक है, इट वॉज लुकिंग लाइक अ waterfall was falling, and that waves and that instrument was creating a small waves, ठीक है, एक स्मॉल वेव्स की तरह उसका जो म्यूज़िक था वो इसके कानों तक जा रहा था, पर क्योंकि इसके कान तो थे नहीं, बट इट हैज़ बीन कंपेयर्ड एज दैट जेंटल वेव्स, ठीक है। यहाँ पे जेंटल वेव्स का मतलब है, यहाँ पे जेंटल का मतलब है सॉफ्ट, ठीक है, और रिपलिंग का मतलब है स्मॉल वेव्स, ठीक है, ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब वो उस स्नेक चार्मर के पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर, राइट। अब क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स ऐसे, मतलब उन्होंने मना किया हुआ है, फॉरबिडन मीन्स प्रोहिबिटेड, मतलब मना ही करना या मना कर देना, ठीक है, या मना करना। तो उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया है ऐसे कोर्स म्यूज़िक सुनने को, मतलब ऐसे रफ़, कोर्स का यहाँ पे मतलब है रफ़, ऐसे रफ़ म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसे अच्छे से पता था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया है, ऐसे रफ़ म्यूज़िक मुझे नहीं सुनना है, ठीक है, जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा था अपने इंस्ट्रूमेंट से, तो वो प्रोसीड फर्दर कर जाता है, मतलब वो आगे बढ़ जाता है, राइट। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। दैट वॉज There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter, right? अब वहाँ पे राउंड अबाउट का मतलब है झूला, ठीक है, जो चारों ओर नाचता है।
तो वहाँ पे आगे वो थोड़ा बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पे एक झूला लगा हुआ था जो कि चारों ओर घूमता है, ठीक है, चारों ओर घूम रहा था। तो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे, मैन वेमेन एंड चिल्ड्रेन, दे वर कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन। वर्लिंग का मतलब है कि एक घुमावदार मोशन में, ठीक है, घुमावदार चक्कर में वो उस झूले पे झूल रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड, ठीक है, श्रीक्ड मीन्स स्क्रीम, मीन्स चिल्लाना। अब वो चिल्ला रहे थे, जैसे आपने कई बार देखा होगा झूले में, जो बड़े बड़े झूले जो चारों ओर घूमते हैं, उस झूले में जब लोग बैठते हैं तो कई ऐसे सारे लोग होते हैं कि जब झूला चलता है तो वो उनके डर की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से वो चिल्लाने लगते हैं या हंसने लगते हैं तेज़ तेज़। तो उसी तरीके से वहाँ भी लोग कर रहे थे और वो उन्हें करते हुए ये देख पा रहा था। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। डिजी मीन्स वीक लाफ्टर, मतलब अब किसी को हंसी नहीं आ रही थी फिर भी वो धीरे धीरे हंस रहे थे, क्योंकि झूले पे ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को डर लगता है, इसलिए वहाँ पे जो भी लोग थे वो चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे एकदम वीक लाफ्टर में, ठीक है। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली। इंटेंटली मीन्स केयरफुली, बहुत मतलब बहुत चौकन्ने होकर वो बच्चा इन सारे लोगों को देख रहा था। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और बहुत पोलाइटली उसने फिर से एक रिक्वेस्ट अपने फादर और मदर से की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ मदर फादर एंड मदर, ठीक है। वो बोलता है कि मुझे उस राउंड अबाउट, मतलब मुझे उस वहाँ पे जाना है, इस झूले पे झूलना है, बहुत ज़्यादा उसने बोल्ड रिक्वेस्ट करते हुए ये बोलता है। लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there, ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. ठीक है। अब वो जैसे वो बोलता है अपने पापा और मम्मी से, ठीक है, मदर से और फादर से, कि मुझे उस झूले पे झूलना है प्लीज़ करके वो बोलता है, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, ठीक है। वो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, उस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं आता, उसके रिक्वेस्ट का कोई रिप्लाई नहीं आता। और जैसे वो टर्न करता है पीछे देखने के लिए, तो उसको वहाँ पे अपने मदर और फादर नहीं दिखते हैं, नहीं मिलते हैं। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, और वो अपने चारों तरफ घूम कर देखता है, पर कहीं भी उनके मम्मी पापा, उसको अपने मदर और फादर नहीं दिखते हैं। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और कोई उनका वहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था, मतलब कोई भी वहाँ पे ऐसा कोई साइन नहीं था जहाँ जिससे कि ये लगे पता कि उसके मदर और फादर लेफ़्ट गए हैं या राइट गए हैं या स्ट्रेट गए हैं या पीछे की ओर गए हैं। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेर ही स्टूड, क्राइंग इन अ रियल फियर मदर फादर, राइट। अब अभी तक तो वो शांत था, रो नहीं रहा था, पर अचानक जब वो अपने मदर और फादर को नहीं देखता है तो वो रोना शुरू कर देता है। ड्राई थ्रोट मीन्स अभी तक वो एकदम शांत था, पर अब वो अचानक से रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा रहता है, अब उसे पता नहीं रहता कि इतनी भीड़ में वो किसके पास जाए। एंड विद अ सडन मीन्स क्विक, जर्क मीन्स मूव, और वो तुरंत अपने बॉडी को मूव करता है और वहाँ जहाँ वो खड़ा रहता है वहाँ से भागना शुरू कर देता है इधर उधर। क्राइंग इन अ रियल फियर, और बहुत डरा हुआ रहता है। और वो क्या बोलता रहता है? डरा तो हुआ है, पर वो और साथ साथ क्या बोलता रहता है? मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, ठीक है, और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हॉट एंड फियर्स, ठीक है, हॉट एंड फियर्स मीन्स वाइल्ड और मैड। अब उसका जो चेहरा, ठीक है, हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। अब जो उसका चेहरा अभी तक एकदम खुशनुमा चेहरा था उसका, एकदम खुशी खुशी वो पूरे मेले में अपने मदर फादर के साथ घूम रहा था, अब वो इतना डर जाता है, इतना गर्म हो जाता है उसका चेहरा, एकदम पागलों की तरह उसका चेहरा बन जाता है, ठीक है, कि अभी थोड़ी देर पहले इतना अच्छा सा फेस था उसका, एकदम खुशी वाला फेस था, एकदम खुश वाला फेस था, अब उस पर क्या हो गया? वो एकदम गर्म हो गया है क्योंकि धूप भी थी, और दूसरी चीज़ वो एकदम उसके चेहरे पे वो पागलपन, मतलब एक जैसे कहते नहीं कि मतलब ढूंढ ढूंढ के वो पागल हो गया था, वो पागलपन उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, ठीक है, और वो डर के मारा काँप रहा था। ये साफ उसके बॉडी से और खासकर उसके फेस से पता चल रहा था। Panic stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he wailed, ठीक है।
अब पैनिक स्ट्राइकन का मतलब होगा टेरिफाइड। टेरिफाइड मतलब बहुत डर गया था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि पहली बात तो बहुत सारी भीड़, इतने ज़्यादा लोगों के बीच में था वो, और दूसरी बात उसके फादर मदर नहीं मिल रहे थे उसे, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक साइड गया, फिर दूसरी साइड, देन हितर एंड तितर। हितर एंड तितर मीन्स हेयर एंड देयर, ठीक है। अब वो इधर उधर चारों ओर चक्कर लगा रहा है और अपने फादर और मदर को ढूंढ रहा है। इन ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो, पर उसे ये नहीं समझ में आ रहा था तब कि आखिर मैं जाऊँ कहाँ, कि जहाँ मुझे मेरे मम्मी और पापा मिल जाएं। मदर फादर ही वेल्ड, वेल्ड मीन्स क्राई, और वो रो रो के सिर्फ अपने मदर और फादर को ही बुला रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और जो एक येलो टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी होता है, ठीक है, जो सर पे बांधते हैं, खासकर आपने सिख लोगों को देखा होगा, या नॉर्मली आपने विलेज एरिया में देखा होगा, लोग अपने सर पे रुमाल जैसा या जो तौलिया जैसा होता है उसे बांधते हैं, तो दैट इज़ नोन एज टर्बन। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, अनटाइड मीन्स टू गेट लूज। अभी तक तो वो फिट था, पर क्योंकि उसके इतने भागने, इधर उधर भागने की वजह से जो टर्बन, जो अभी पगड़ी उसने बांध रखी थी, वो ढीली हो गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और इधर उधर भाग के उसका जो क्लोथ था, जो कपड़े थे, वो गंदे हो गए थे। मडी मीन्स डर्टी। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. ठीक है, हैविंग रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर जगह चारों ओर जब वो दौड़ लिया। इन अ रेज ऑफ रनिंग, रेज मीन्स वायलेंटली, ठीक है, मतलब क्योंकि उसे गुस्सा भी लग रहा था, उसे डर भी था, और काफ़ी चीज़ें उसे सता रही थी, काफ़ी चीज़ें उसे परेशान कर रही थी, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। तो इसी गुस्से में, इसी परेशानी में, इसी प्रॉब्लम में वो उसने क्या किया, जब वो दौड़ लिया, ठीक है, चारों ओर दौड़ लिया, गुस्से में, परेशानी में, कन्फ्यूजन में, जब वो खुद दौड़ लिया इधर से उधर और ढूंढ लिया अपने मदर फादर को, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ही स्टूड डिफीटेड, और फिर वो एक जगह खड़ा हो गया। डिफीटेड मीन्स नो गेन, मतलब उसे इधर उधर घूम फिर के, इधर उधर भाग दौड़ के, फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी उसको अपने मदर और फादर नहीं मिले। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, ठीक है। अब वो जो अभी रो रहा था, तेज़ तेज़, बहुत तेज़ तेज़ से रो रहा था। सप्रेस्ड मीन्स प्रिवेंट या टर्न डाउन। अब वो टर्न डाउन मतलब उसकी जो रोना था उसका, अब वो किस में बदल गया, सिस्कियों में। सॉप्स मीन्स वीप, वीप, और हिंदी में हम सॉप्स को किस नाम से जानते हैं, सिस्कियाँ। जैसे आपने घर में भी देखा होगा, बच्चे जब जिद करते हैं तो बहुत तेज़ तेज़ रोते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका ये जो रोना होता है वो बदल किस में जाता है, सिस्कियों में, मतलब वो धीरे धीरे रोते रहते हैं काफ़ी देर तक। तो उसी तरीके से उसका रोना अब सिस्कियों में बदल गया था। एट लिटिल distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking, ठीक है। और उसके कुछ दूरी पे ग्रीन ग्रास मतलब हरी भरी घास में उसने कुछ लोगों को, कुछ आदमियों को और औरतों को देखा बैठकर बात करते हुए। थ्रू हिज फिल्मी आइज़ का मतलब क्या है, टीयरी आइज़, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझो कि कभी जैसे आप अभी नॉर्मली आप किसी चीज़ को देखते हो अपनी आँखों से तो साफ दिखता है, ठीक है, पर कभी कभी जब आंसू होते हैं, ठीक है, आंसू आ जाते हैं आँखों में, और आँखों में पूरे आंसू भरे हुए होते हैं, पानी मतलब भरा हुआ होता है, तो आपको देखो किस तरीके से चीज़ें आपको साफ नहीं दिखती ना, तो इसलिए यहाँ पे मतलब है फिल्मी आइज़। फिल्मी आइज़ मीन्स टीयरी आइज़, मतलब फुल ऑफ टीयर्स, आइज़ फुल ऑफ टीयर्स, ठीक है। तो अपने आँखों में जो भरी हुई, उसके आँखें जो भरी हुई थी आंसुओं से, उन्हीं आँखों से, उसी तरीके की आँखों से वो देखता है कि थोड़ी दूर पे उसे हरी भरी घास है, और वहाँ पे कुछ औरतें और ये मेन लोग वहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, right? So अब जब इन लोगों पे उसकी नज़र जाती है तो बहुत केयरफुली देखता है। केयरफुली मतलब बहुत नज़रें गड़ा के अपनी देखता है। वो ये सोच के देखता है कि कहीं यहीं तो मेरे मम्मी पापा बैठे नहीं हैं इन लोगों के बीच में, तो वो इसीलिए वो बहुत केयरफुली, इंटेंटली उन लोगों को देखता है। अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, ठीक है। तो
वहाँ पे जो लोग उसको दिख रहे थे वो ज़्यादातर येलो कलर के कपड़े पहन के वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उन्हीं येलो कलर के कपड़ों के बीच में ही वो अपने मदर और फादर को, जो ये लोग पहन के कपड़े बैठे हुए थे, उन्हीं कपड़ों के बीच में, मतलब उन्हीं लोगों के बीच में अपने फादर और मदर को ढूंढ रहा था। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर। पर वहाँ पे इन लोगों के बीच में उसके फादर और मदर को ये ढूंढ नहीं पा रहा था, मतलब वहाँ थे ही नहीं वे लोग, राइट। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। और ये देखता है एक और चीज़ इसने नोटिस की कि वो लोग जो वहाँ पे हरी भरी घास में बैठे हुए थे वो सिर्फ वहाँ पे बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा दिन था, मेले वाला दिन था, लोग खुश थे, तो वो अपने आराम से जो भी दूर दूर से आ रहे थे, तो अगर वो रेस्ट करते हुए वहाँ पे बैठ रहे थे, ठीक है, और वहाँ पे वो हंसी मजाक अपना करते हुए देखे जा सकते थे वे लोग। सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। He ran quickly again, this time to a shrine, to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering. He ran quickly again. फिर से वो दौड़ता है, ठीक है, जब वहाँ पे अपने हरी भरी घास में लोगों के बीच में अपने फादर और मदर को नहीं पाता है, नहीं देखता है, तो वहाँ से भी वो दौड़ पड़ता है। और कहाँ दौड़ के जाता है इस बार? एक श्रीन में। श्रीन मीन्स टेम्पल, ठीक है, तो एक मंदिर रहती है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे वो जाता है। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, और जहाँ बहुत सारे लोग जो कि मेले में घूमने आए थे वो उस मंदिर में दर्शन के लिए भी जा रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड। कंजेस्टेड मीन्स पैक्ड, ठीक है, तो हर एक, मतलब आपने देखा ही होगा कि मंदिरों में कैसे भीड़ रहती है लोगों की, ठीक है, क्योंकि मेला भी था और दूसरी चीज़ मेले के बीच में ही ये मंदिर थी, तो और भीड़ जाहिर सी बात है कि वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ रही होगी उस मंदिर में। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, लोग भरे हुए थे उस मंदिर में भी, ठीक है। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, पर ये किसी तरह छोटा बच्चा था, तो ये किसी तरह लोगों के पैरों के बीच से अपना रास्ता बनाते बनाते आगे की ओर चला जा रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और वो सॉब लिंगरिंग का मतलब है वो कंटिन्यूसली वो सिसकियाँ ले रहा था, मतलब रोना उसका बंद नहीं हुआ था, वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा था एंड ही वॉज क्राइंग मदर एंड फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिंक, और जैसे एंट्रेंस आया मंदिर का, जो मेन गेट था, वहाँ पे जब ये बच्चा पहुँचा तो वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है। मैन जॉसल ईच अदर, हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरर्स आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, ठीक है। अब वहाँ पे ये जो मैन लोग थे, मतलब आदमी लोग थे, ठीक है, वो एक दूसरे को पुश कर रहे थे। जॉशल मीन्स पुशिंग, ठीक है, जॉशल मीन्स टू पुश, एल्बो से पुश करना, मतलब अपने कंधों से या अपने एल्बो से लोगों को पुश करना। जैसे आपने देखा होगा बहुत भीड़ भाड़ में, जब आप कहीं मेले में जाते हैं तो जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग कैसे वहाँ पे वॉक करते हैं, अपने हाथों से, अपने एल्बो से, अपने शोल्डर से लोगों को हटाते हैं, फिर आगे आगे चलते जाते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ भी हो रहा था। ईच अदर हैवी मैन, और ये जो लोग थे बहुत भारी भरकम थे, ठीक है, विथ फ्लैशिंग मर्डरर्स आइज, और इनकी आँखों को देख करके, यहाँ पे ऑथर बता रहा है कि इनकी आँखों को देख करके ऐसे लग रहा था कि ये कोई मर्डरर हैं, ठीक है, और उनकी आँखें जो हैं वो फ्लैशिंग, यहाँ पे फ्लैशिंग का मतलब है उनकी आँखें भी शाइन कर रही थी, एंड दे वर लुकिंग एज अ मर्डरर। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, हेफ्टी मीन्स हैवी, बहुत भारी भरकम शरीर वाले लोग यहाँ पे थे जो कि मंदिर के आसपास या मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, और इन्हीं के बीच में वो छोटा बच्चा भी अपने मदर और फादर को ढूंढने के लिए रास्ता बना के जा रहा था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, ठीक है। अब ये बेचारा छोटा बच्चा किसी तरह स्ट्रगल कर रहा था, किसी तरह मेहनत कर रहा था आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। थ्रस्ट मीन्स पुश, ठीक है, और उनको हटाते, किसी तरह हटाते अपने हाथों से, छोटे छोटे हाथों से, पैरों से, लोगों के बीच में रास्ता बनाते हुए या लोगों को हटाते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था उनके पैरों के बीच से। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, नॉक्ड मीन्स हिट, पर वो इधर उधर, मतलब उसे फेंक दिया जा रहा था, मतलब किसी का पैर लग रहा था तो वो इस तरफ जा रहा था, किसी दूसरे का पैर लग रहा था तो वो बेचारा इधर उधर, मतलब वो इधर उधर टहल रहा था, वो भीड़ में आगे नहीं पढ़ पा रहा था, पर वो लोगों से टकरा के इधर उधर बस भटक रहा था।
बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, और ब्रूटल मीन्स वायलेंट मूवमेंट्स, क्योंकि अब लोगों की भीड़ थी, कोई लाइन तो लगी नहीं थी कि लाइन लगी हो तो आराम से निकल जाए, मतलब वायलेंटली वो मूव कर रहे थे, मतलब बिना देखे। लोग जो थे वहाँ पे ना इधर देख रहे थे, ना उधर, ना आगे देख रहे थे, ना पीछे, ना अगल ना बगल, वो बस अपने धुन में आगे बढ़ते जा रहे थे, और इन्हीं के बीच में वो बच्चा भी इन लोगों से हमेशा टकरा जा रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ट्रैम्पल्ड मीन्स क्रश, और वो क्रश हो जाता, मतलब उसको वो पैरों के नीचे, इन लोगों के पैरों के नीचे वो आ जाता। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, हैड ही नॉट श्रीक्ड का मतलब है, श्रीक्ड मीन्स टू शाउट, अगर वो चिल्लाया ना होता। हैड ही नॉट श्रीक्ड का मतलब है अगर वो चिल्लाया ना होता, तेज से, एकदम बहुत तेज़ से उसने चिल्लाया, और अगर वो चिल्लाता ना, अगर वो यहाँ पे चिल्लाया ना होता तो पक्की बात है कि वो इन लोगों के पैरों के नीचे दब जाता। मदर एंड फादर, और वो क्या चिल्ला रहा था, मदर एंड फादर, बहुत तेज़ से वो चिल्लाया, और अपने इसी चिल्लाने की वजह से वो वहाँ पे क्रश होने से, मतलब दबने से, लोगों के पैरों के नीचे आने से या दबने से बच गया। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। ठीक है, अ मैन इन द सर्जिंग, सर्जिंग मीन्स रश, अब क्योंकि चारों तरफ रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, ठीक है, तो उसी क्राउड में एक आदमी भी था, ठीक है, जो वहाँ पे दर्शन के लिए गया हुआ था, ठीक है, उसने इस छोटे बच्चे की आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, स्टूपिंग मीन्स बेंड, बेंड करना मतलब झुकना, और बहुत कठिनाई से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लेते हुए या कठिनाई सहते हुए वो किसी तरह झुकता है, ठीक है, झुकता है, और इस बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। ठीक है, अब वो उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए, ठीक है, तुम किसके बेटे हो या तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड, स्टीयर्ड मीन्स ड्राइव आउट, ठीक है, और मास का मतलब है क्राउड, जब वो भीड़ से थोड़ा अलग होता है, उस बच्चे को लेकर के उस भीड़ से थोड़ा अलग हो जाता है, और तभी वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। तो स्टीयर्ड मीन्स ड्राइव आउट, मतलब बाहर निकलना, ठीक है, उस भीड़ से जब वो बाहर निकलता है तो ये सारी क्वेश्चन उस बच्चे से वो पूछता है कि तुम किसके बेटे हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गए। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। ठीक है, wept means to cry, मतलब रोना, bitterly means loudly। अब वो बच्चा, क्योंकि अब वो किसी और के गोद में था, और ऐसे किसी इंसान के साथ था या पास में था जिसको वो बच्चा नहीं जानता था, वो छोटा लड़का इस आदमी को नहीं जानता था, तो वो और तेज तेज से रोने लगा या रोने लगता है, और सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man tried to soothe him up, to soothe him by taking him to the roundabout। ठीक है, तो अब वो आदमी क्या करता है, उसे शांत कराने की कोशिश करता है। सूद मीन्स टू रिलैक्स, अब उसे शांत कराने की कोशिश करता है, रिलैक्स कराने की कोशिश करता है ताकि ये बच्चा और ना रोए, ठीक है, तो उसे कहाँ पे ले जाता है, उस राउंड अबाउट के आसपास, मतलब उस झूले के आसपास जिस झूले को झूलने के लिए वो थोड़ी देर पहले अपने फादर मदर से कह रहा था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, अब वो बोलता है कि क्या तुम हॉर्स पे राइड करोगे, मतलब क्या तुम इस झूले पे झूलना चाहोगे। ही जेंटली, जेंटली मीन्स पोलाइटली और नॉर्मली, तो वो पूछता है। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, अप्रोच्ड द रिंग, अप्रोच मीन्स मूविंग टूवर्ड्स, अब जैसे उस झूले की तरफ जाता है, बहुत पास में जाके उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम झूलना चाहोगे इस झूले पे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill शॉप्स एंड ही ओनली शाउटेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो जो धीरे धीरे रो रहा था अभी, फिर से वो बहुत तेज़ी से रोने लगता है। थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill शॉप्स का मतलब है, सॉप्स का मतलब है सोबिंग, जो उसकी सॉबिंग थी वो टर्न इनटू अ लाउड क्राई, अब जो उसकी सिसकियाँ थी फिर से बहुत तेज रोने में बदल जाती है, मतलब अभी जो वो सिसकियाँ ले लेके रो रहा था, अब वो फिर से बहुत तेज़ से रोने लगता है, और सिर्फ एक ही बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था या कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। So homework students, you all have to write down all the hard words and meanings in your classwork copy, right? And also read the pages covered till now once again, right? So what you have to do is, आपने देखा कि जब अभी मैंने कई सारे वर्ड मीनिंग्स
मैंने किए हैं अपने बुक में, ठीक है। जिस तरीके से अभी मैंने वीडियो में आपने देखा, तो उसी तरीके से आपको अपने बुक में भी मीनिंग्स लिखनी है और सेम हार्डवर्ड, ठीक है, आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में भी लिखना है और वो वाले हार्डवर्ड्स और मीनिंग्स भी लिखना है जो हमने लाइव क्लास में कवर किया था, राइट। ऑल्सो रीड द पेजेस 5 and 6, और 5 and 6 पेज आपको रीड करना है इस चैप्टर में, जो कि लास्ट चैप्टर लास्ट पेजेस 2 पेजेस बचे हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सो यू हैव टू रीड pages 5 and 6 and you also have to cover, means write down the hard words and meanings in your classwork copy and meanings in your book, right? So students, in our next class we will continue this same chapter, right, because 2 pages are still left, and after that this whole chapter will get completed, right? So in our next class we will continue with the same chapter, right? So till then take care and stay safe. Thank you, class.